Good morning, everyone. In previous class, we have studied Maxwell equations, and we have seen that the EM waves are actually defined by some previously developed theories like Faraday's law of induction, Ampere's circuital law, Gauss law in electricity and magnetism, both. So we can easily say that Maxwell has actually predicted some kind of behavior using the previously developed theories. Means Maxwell used the previously defined concepts for explanation or for prediction of the generation of EM waves. And Henrik Hertz, after 20 to 30 years of prediction of Maxwell, actually generated the electromagnetic waves in laboratory. So we will see Hertz experiment also. But firstly, we are going to study Maxwell's predictions. See, we have already studied multiple times in this chapter the Maxwell predictions. So what are Maxwell predictions? There are two predictions. First one, which is generated from or is based on Faraday's law of induction, that is, a time varying magnetic field is a source of changing electric field. So I am going to write it. There are two predictions. A time varying magnetic field is a source, we can say source of changing not a constant but changing electric field. This we have studied multiple times. Now, as this is first prediction, that is, from magnetic field we can generate electric field. Similarly, the theoretical studies also lead Maxwell to a concept that is a time varying electric field is a source of changing magnetic field. So these are two very important statements. This you have to memorize also. See, electromagnetic waves are actually waves. How can we predict it? Because Maxwell have observed that this process, that is from magnetic field to electric field and from electric field to magnetic field, it is a continuous process. All right, and we can say both varying with space and time. All right, so some kind of wave is generated, or we can say these variations in electric and magnetic fields occur in mutually perpendicular directions and have wave-like properties. That is why the fluctuations generated are called waves. All right. So we can define electromagnetic waves like this according to Maxwell's predictions. An electromagnetic wave is a wave radiated by an accelerated charge. This you have to point out that it is radiated by an accelerated charge. You have already know that during the oscillations there is acceleration, है ना, हमेशा होता है acceleration या deceleration. So oscillating charge particle also generate electromagnetic wave, and which propagates through space as coupled
इलेक्ट्रिक किस तरह से स्पेस में ट्रेवल करती है, प्रोपागेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है, जैसे दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल्ड हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यानी वेव किसकी है, वेव एनर्जी की है। मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें अपने लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव जो मैकेनिकल वेव्स होती थी, हम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव सोच के चलते हैं, जैसे साउंड वेव होती है, वहाँ पे ट्रांसमिशन एनर्जी का होता है बिल्कुल, लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह ऑक्सीलेट करते हैं, लेकिन वहाँ पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ स्पेस नहीं होता है ना। तो वी कैन ईजिली इन्फर दैट what behavior that particle is showing in the mechanical waves, here that behavior is shown by electric fields and magnetic fields. All right, now the oscillating perpendicular to each other, electric and magnetic fields are oscillating perpendicular to each other, all right, and to the direction of propagation of the wave. It means electric field का oscillation, fields हैं ये, और फील्ड ऑक्सीलेट कर रहे हैं। कैसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, फील्ड का कोई पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पोजीशन पे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, किसी पे और ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की जो साइज है इट इज़ एक्चुअली द मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसी वेव शो होगी, उसको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ कि EM वेव्स का एक्चुअल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम लोग कैसा बनाया करते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल coordinate system. Here I am going to draw electric field wave. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये जो वाइब्रेशंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगी। इफ़ आई एम मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो वेरिएशन है जो उसके मैग्नीट्यूड का, वो मैंने वाई एक्सिस पे माना, वाई एक्सिस पे हो रहा है अगर, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। इट इज़ अप एंड डाउन लाइक ट्रांसवर्स वेव्स। ये जो मैं बना रहा हूँ, दीज एरोज, ये जो ये लाइन मैंने ये जो कर्व ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल वेव नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं शो कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ पे आधी, ये जो एक आधी वेव में क्या हुआ, जब मैं कह लूँ पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, या कह ले कि पूरा बिहेवियर इलेक्ट्रिक वेक्टर का क्या है, एक बार सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, यानी 1/4 साइकिल में ये मैक्सिमम होता है ना, 1/4 साइकिल में इट इज़ मैक्सिमम, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज़ व्हाट, E0 और E0। फिर वो घटना शुरू होता है और 1/2 साइकिल में इट इज़ अगेन 0। आफ्टर दैट द oscillation direction of the electric vector is nothing but the magnitude of the electric field, है ना। तो अब ये डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि फील्ड डायरेक्शन का चेंज होना। तो यहाँ पे अपोजिट बिहेवियर, यहाँ मैक्सिमम, फिर ये घटना शुरू होगी, फिर ये कंप्लीट साइकिल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 अगेन, एंड देन इट विल अगेन फॉलो द सेम पाथ। ऐसे कर सकते हैं, दीज आर एक्चुअली एरोज, दैट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर इज शोन बाय दीज एरोज। और वो जो कर्व बनाया था मैंने, इट इज ओनली दी नोटेशन, एक्चुअल तो कर्व, ये जो एरोज हैं यही एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पिक्चराइजेशन है उसको दिखा रहे हैं। ये वेव, ये जो मैंने बनाया है, ये इन्हीं को ट्रेस किया है केवल, ठीक है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, देन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए ये वेव चल किधर रही है, वेव हमको पता चल रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, बट वेव इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। ऑलराइट, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वी कैन शो, बट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑल्सो। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन। ये पन्ने के बाहर निकला हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे आपकी तरफ बाहर है, 3 डायमेंशन में सोचिए इसको। ऑलराइट, दिस बिकम्स दिस अगेन, ऐसे सोच सकते हो कि ये बाहर निकला है, ये अंदर की ओर, ठीक है, ये बाहर निकला है, ये अंदर की ओर।
ठीक है, तो ये it is like this only. Here the arrows are showing magnetic vectors. What are these arrows? These are the magnitudes of the magnetic vectors. और यहाँ सबसे important चीज़ you have to notice that when magnitude of the electric vector is maximum at some position, then that particular position electric vector will also be maximum. All right, so these red curves are actually electric vectors, all right, and this black curves are actually magnetic vectors, and we can trace it like this. So it is sinusoidal, ये trace के बाद आया है, and it is moving in x direction, so it is the direction of propagation. So here it is not single wave, here it is combination of two waves, all right, coupling of two waves. So in equation form we will study that it is actually shown by EM waves can be shown by the couple of two electromagnetic two waves that are sinusoidal. It is electric and magnetic both, all right. So now I am going to show you some mathematical representation that you already know from your 11th class physics, that is sinusoidal representation of any wave, all right. But here we are going to use electric vectors and magnetic vectors for amplitudes and all other quantity you already know, that is frequency, wave number, angular frequency and all these things. So I am writing it here for electric vector. The electric vector can be represented as कैसे होता था, just because we have seen the electric vectors are in y direction only, so electric vectors will only be in y direction, so all other electric vector directions components will be zero. x direction में कुछ नहीं है, ex zero होगा magnitude, y direction z direction में कुछ नहीं है, it is zero. Only which one will survive? y डायरेक्शन वाला विल सर्वाइव, सो इट इज वी ई वाई. और देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई वाई मल्टीप्लाइड बाई जे कैप लिख दें तो ये वही सेम चीज़ है ना y डायरेक्शन का. सो दिस वी कैन राइट इजली. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड. देखो ये जो साइनोसॉइडल वेरिएशन इसकी साइज का हो रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैंने कितना बताया, ई नॉट. एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड रखते हैं. अगर आपको याद हो एक साइनोसॉइडल वेव कैसी नज़र आती है, मैं यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप की होती थी अगर y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था, और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी उसका आर्गुमेंट होता था जो चेंज होता था, है ना, साइनोसॉइडल वेरिएशन. हियर के इज वेव नंबर, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो टी टाइम में जिधर प्रोपागेशन हो रहा है उस डायरेक्शन को शो करता है, ये वाला ना एक्स. ये एक्स किसको शो करता है, जिधर प्रोपागेशन हो रहा है. ये वाला क्या है, एम्पलीट्यूड है. इट इज फ्रीक्वेंसी from which the wave is propagating. So I am writing it here. See in the figure also E नॉट है. अब देखो E नॉट में ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, साइनोसॉइडल वेरिएशंस. आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए, वेव नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है वो डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना है ना, वेरिएबल, माइनस मान लीजिए ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है एंड टी इज द टाइम, एनी आर्बिट्ररी वेरिएबल टाइम.
and multiplied by j cap so that we can assure its direction. Which direction? J is actually the direction of E, not propagating wave. This is showing the propagation. So we can write E naught sin, अब देखो k को 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो 2 पाई बाई लैम्डा चेंज कर दो, x माइनस, अब ओमेगा को 2 पाई बाई टी कह सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड j कैप. सो वी कैन टेक दिस आउटसाइड a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस t बाई टी, और ये हो गया j कैप. So this is also the expression for E. Alright. Similarly, I am writing it directly, but you can verify that B can also be written as, if B naught is the amplitude, B naught sin, क्योंकि देखो B naught का भी प्रोपागेशन तो x डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो बाकी सारी क्वांटिटीज सिमिलर होंगी, बट एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट. एंड 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी, एंड यहाँ पे देखो ये y डायरेक्शन में है ना E, इसलिए E को y डायरेक्शन में कोई नुकसान नहीं है, वी हैव रिटन इट इन y डायरेक्शन. सो दिस B विल बी इन विच डायरेक्शन? इट इज इन z डायरेक्शन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई k वेक्टर, यूनिट वेक्टर. ऑलराइट. So these are the two equations written simultaneously so that these two are combined to form which wave? Electromagnetic wave. इनको साथ में भी लिखने का, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है, but at this moment of time we are going to study only the behavior and the values of the or the basic concepts of the electromagnetic wave. That is why we have written it simultaneously but not coupled. मतलब ये दोनों इक्वेशंस के एम्पलीट्यूड को साथ साथ तो लिखा गया, लेकिन मिला के नहीं लिखा गया. आगे आप देखेंगे कि हम इसको साथ में भी लिखा करेंगे. ऑलराइट. सो इक्वेशन 1 and 2 are actually the variations in electric and magnetic fields. You can infer here that देर इज सेम फेज. यहाँ कोई फेज का वेरिएशन नहीं है ना, साइन साइन दोनों में है, दोनों में कोई फेज एंगल अलग से नहीं आया. सो दे बोथ आर इन सेम फेज. वी कैन राइट इट हियर, दे बोथ आर इन सेम फेज. नाउ इट इज वेरी क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड्स आर सेम, क्योंकि वो मैक्सिमा सेम समय पे जा रहे हैं, मिनिमा भी सेम समय पे पड़ रहा है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी विल बी, अगर हम मैग्नीट्यूड को नापना चाहते हैं और दोनों ई वेक्टर और बी वेक्टर सेम है, तो इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं, ई बाई बी, है ना. और हम ये पाते हैं कि ई बाई बी जो होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू सी अ कांस्टेंट. ऑलराइट. एंड इट इज, सी इज व्हाट? सी इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम. तो इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो क्या होता है, या कह दें इनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या होता है, सी होता है. ठीक है. मतलब अभी हम केवल इंट्रोडक्शंस देख रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व किया मैक्सवेल ने, या कह दें कि उन्होंने दिखाया इसको ऑब्जर्वेशन को, कि दी व्हेन स्पीड ऑफ EM wave is calculated, then we have got that the speed of an EM wave depends on the permeability and permittivity of the medium through which it travels. यानी EM wave की, एकदम ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़न होता है. EM wave की स्पीड परमिटिविटी और परमिएबिलिटी यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करती है. एंड ही हैज शोन दैट द स्पीड ऑफ द EM wave is actually c and it is equal to 1 by root over mu naught epsilon naught. और हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, और शायद हमने पीछे एक बार देखा भी है कि जो EM wave की स्पीड होती है that is equal to 1 by root over mu naught epsilon naught when free space, when moving in free space. So it is for free space. Now if I say it is not free space, then what will be the value? तो obvious है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, when it is in some medium then
फॉर एनी आर्बिट्रेरी मीडियम speed will be क्या होगी? इट इज v इज इक्वल टू 1/√/ε/μ। ऑलराइट, और एप्सिलॉन म्यू को आप चेंज कर सकते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। यू कैन पुट इट लाइक दिस। एप्सिलॉन की जगह k एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं और म्यू की जगह म्यू आर म्यू नॉट लिख सकते हैं। देन वी कैन इन्फर here using c is equal to 1/√/μ0 we can say that it is actually c/√/of k mu r। ये छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। अभी इसका प्रूवमेंट हमने पीछे एक बार देखा भी है जब हम अपना मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, और अभी हम आगे भी इसको देखेंगे। अभी तो केवल इंट्रोडक्शंस हैं। तो अब देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्ट्ज का क्या एक्सपेरिमेंट था? Let's see. Hertz have actually in 1887 means 1865 के आसपास इन्होंने ये क्या कहते हैं, मैक्सवेल ने EM वेव्स के बारे में प्रेडिक्ट किया, और 1887 में इन्होंने क्या कहते हैं, हेनरिक हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया। He has used it, he actually produced the EM waves। उन्होंने क्या किया, एक एक चीज़ समझिएगा। अगर इसका ये समझ में आ गया कि कैसे बन रहा है तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने 2 मेटल प्लेट्स ली, बहुत छोटी मेटल प्लेट्स हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70 सेंटीमीटर उसकी क्या कहते हैं डिस्टेंस है दोनों के बीच की, और इनके सेंटर के बीच की दूरी मतलब 60 to 70 सेंटीमीटर है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से उन्होंने एक वायर के थ्रू, बहुत पतले वायर के थ्रू, यहाँ पे 2 बॉल्स ऐसे स्फीयर टाइप के जोड़े हैं जो ब्रास के बने हुए हैं। किसके बने? ब्रास के। एंड दिस वायर इज एक्चुअली कनेक्टेड टू एन इंडक्शन कॉयल। एज यू नो, इंडक्शन कॉयल, it is actually the coil surrounded by a lot of copper wires so that we can apply very large voltage। ठीक है, यहाँ से हम इसको इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। it is actually induction coil। this is metal plate and these are spheres S1 and S2। all right, so now in this particular arrangement, ये जो गैप है, ये S1 S2 जो है मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज़ मेड ऑफ ब्रास। अब देखिए होता क्या है, जब हम यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन यहाँ पे करते हैं, मतलब बहुत, चूँकि देखिए इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं ऑक्सीलेटर के थ्रू, और इंडक्शन कॉयल में यहाँ पे हाई वोल्टेज इंड्यूस होगा। हाई वोल्टेज इंड्यूस होगा तो ये जो एक लो कैपेसिटेंस, ये जो मेटल प्लेट्स हैं, ये एक लो कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का काम करती हैं, और ये जो वायर जुड़े हुए हैं ये लो इंडक्टेंस के वायर का काम करते हैं, यानी L और C दोनों कम। अब ये देखिए इंडक्शन कॉयल क्या है, लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज होती है करंट की, तो इनके बीच में ये जो 2 ब्रास वायर है यहाँ बहुत हाई पोटेंशियल आ जाता है। मैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो भी आपको साथ में ऐड करूँगा, यू कैन सी इट विल बी एन एनिमेशन वीडियो, आप उसको एक बार ज़रूर देखना। उसको लैब में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की गई है। तो देखिए लगातार इसके बीच में, चूँकि ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे 2 अगर ब्रास ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो एज इफेक्ट के कारण यहाँ पे खूब ज़्यादा पोटेंशियल आ जाएगा, तो यहाँ से चार्जेस, फ्री चार्ज निकल के इसमें जाएंगे, और फिर जब डायरेक्शन चेंज होगी इंडक्शन कॉइल की तो फ्री चार्ज इसमें जाएंगे, तो लगातार फ्री चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीलेट करेंगे हवा में, मतलब स्पेस में बीच में, क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और वो किस वेलोसिटी, किस मतलब फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि प्लेट्स को ऐसी मटेरियल की प्लेट ली गई है, और चूँकि इनको बहुत कम कैपेसिटेंस का रखा गया है तो कैपेसिटेंस कम हो गया, और ये जो वायर यूज़ किया इट इज़ ऑफ लो इंडक्टेंस, तो LC, और आपने पढ़ा था 1/√LC इक्वल्स टू ओमेगा, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी इसमें
है ना, जो इनके वाइब्रेशंस की, यानी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हुआ, जैसे चिंगारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है उस तरह चार्जेस ही एक्चुअली होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार इसके बीच में वाइब्रेट करेंगे और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से बहुत हाई वोल्टेज पे। और आपने सुना ये वाइब्रेट करेंगे, चार्ज पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है स्पेस में, देन इट इज एक्चुअली एक्सिलरेटेड एंड दैट एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, यही तुमने पढ़ा। तो ये उन्होंने इस तरह से किया कि इंडक्शन कॉयल किया जो लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो चार्ज पार्टिकल एक बार ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी यहाँ से यहाँ गए चार्ज पार्टिकल, फिर यहाँ से यहाँ आए, उस तरह लगातार ऑक्सीलेट, और ऑक्सीलरेशंस के कारण एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है और जिसके कारण यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वी वांट टू डिटेक्ट इट कि ऐसा सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसी कोई चीज़ पैदा भी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत छोटी एक सर्किटरी जिसकी इसके बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दी है, ठीक है। ये S1 डैश S2 डैश है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे ये पाया कि जब यहाँ पे ये S1 डैश और S2 डैश भी पॉलिश्ड ब्रास सरफेसेस ही हैं, सो दिस the electromagnetic waves that reaching the gap of the detector will be associated with a strong electric field, है ना। तो वो यहाँ S1 और S2 के बीच में बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा ना, जब इसके बीच में पोटेंशियल जनरेट करेगा तो स्पार्क बिना देखे, ये दोनों टच नहीं कर रहा है, बीच में गैप है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारा स्पार्क हुआ, वाइब्रेशन शुरू हुआ, यहाँ पे भी स्पार्क शुरू हो गया। ये आपको नज़र नहीं आएगी ये वेव, क्योंकि ये तो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ स्पार्क जब उसी तेज़ी से होगा तो ये हम समझ जाएंगे कि यहाँ से कोई एक एनर्जी यहाँ ट्रांसमिट हुई है बिना वायर के, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और जितना ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होगी और पोटेंशियल यहाँ पे जितना ज़्यादा हाई रखेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे स्पार्क हमें देखने को मिलेगा। और हम जो मॉडर्न इसको जो विजुअलाइज करना चाहते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को, वी यूजुअली यूज़ यहाँ पे नियॉन लैम्प इस्तेमाल कर लेते हैं, नियॉन लैम्प। तो इसको हम देखेंगे कि नियॉन लैम्प एक्चुअली में वो ग्लो करने लगता है, ठीक है, ग्लो करता है। तो हम इसको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी चलिए देखते हैं। ऑलराइट।